that is Biodiversity and Conservation, Chapter 15. Chapter 15, Biodiversity and Conservation. Write down the definition by biodiversity or biological diversity. Write down the first definition बायोडाइवर्सिटी या फिर इसको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बोलेंगे. डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी. तो दिस टर्म वाज गिवन बाय एडवर्ड विल्सन. एडवर्ड विल्सन. It is the variety and variability. Write down the definition. It is the variety and variability among living organisms. It is the variety and variability among living organisms and the environment in which they occur. And the environment in which they occur. It is the variety and variability among living organisms and the environment in which they occur. सबसे पहला जो आपके एनसीईआरटी में टॉपिक गिवन है दैट इज द टाइप्स. तो टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. सबसे पहली डाइवर्सिटी है जेनेटिक. राइट ऑन द हेडिंग 3 टाइप्स. जेनेटिक डाइवर्सिटी में लिखो इट इंक्लूड्स जेनेटिक वेरिएशन विद इन स्पीशीज. It includes genetic variation within species. मैम रिपीट करना. जेनेटिक डाइवर्सिटी में लिख रहे हो बेटे? सपना आपकी आवाज आज बहुत दिनों बाद आई है. पढ़ रहे हो बेटे? सपना ओके. आप क्वेश्चंस बहुत पूछते थे, अब चुप हो गए हो, वापस आ जाओ. तो जेनेटिक डाइवर्सिटी में लिखो इट इंक्लूड्स जेनेटिक वेरिएशन विद इन स्पीशीज. It includes genetic variation within species. मुझे आज 2-3 बच्चों ने ऑफ का बोला था, इसीलिए आई हैव नॉट स्टार्टेड विद एनसीईआरटी. नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी से पढ़ेंगे चैप्टर, तो प्लीज डू नॉट मिस योर क्लास. It includes genetic variation within species, both among geographically separated population. Genetic variation within species, both among geographically separated population. Both among geographically separated population and among individual of single population. Second type is species diversity. मैम इसकी लास्ट लाइन रिपीट कर दो प्लीज. Okay, it includes genetic variation within species, both geographically separated population and among individuals of same population.
स्पीशीज डाइवर्सिटी में लिखो इट includes full range of species on earth. ब्रैकेट में लिखो from unicellular to multicellular organisms. It includes full range of species on earth. Full range of species on earth. नेक्स्ट लिखो इकोसिस्टम या फिर कम्युनिटी, एक ही बात है, कम्युनिटी या फिर इकोसिस्टम. मैम आपने ब्रैकेट में क्या लिखवाया था? कम्युनिटी या फिर इकोसिस्टम. नहीं मैम, पिछले वाला स्पीसीज डाइवर्सिटी. ब्रैकेट में था यूनिसेल्युलर टू मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. इकोसिस्टम या कम्युनिटी में लिखो कम्युनिटी स्लैश इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. इट इंक्लूड्स वेरिएशन इन बायोलॉजिकल कम्युनिटी. It includes variation in biological community. Variation in biological community in which organisms live. Yes, I'll try to रूप और मन्नत. Yes, I'll try to complete the chapters क्योंकि अभी delete नहीं हुए हैं उसमें से, नीट में से. So we'll do. और important chapters है. सिलेबस हमारा बहुत जल्दी फिनिश होने वाला है. ओके मैम. तो कम्युनिटी और इकोसिस्टम में लिखो इट इंक्लूड्स वेरिएशन इन बायोलॉजिकल कम्युनिटीज इन विच स्पीशीज लिव. फॉर एग्जांपल India with desert, rainforest, coral reefs. For example, India with desert, forest, rainforest, mangroves, coral reef. Has greater ecosystem diversity than Scandinavian countries. जहाँ टेम्परेचर जो है थ्रू आउट सेम रहेगा, कोल्ड, देन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज. SCANDINAVIAN, Scandinavian countries like Norway.
अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात आती है, आप लोग नोट डाउन करोगे। मेन कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन गिवन इन एनसीईआरटी, नीट का क्वेश्चन है। मेन कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन? सबको पता है बच्चे, इविल क्वार्टेट्स। सबसे पहला है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। and over exploitation. Exploitation of plants and animal resources. Habitat destruction and over exploitation main reasons है। अब ये तो आ गए causes of extinction। अब आप लिखोगे goals of conservation। What are the two main goals of conservation? बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के मेन गोल्स क्या थे? टू मेन गोल्स हैं। सबसे पहला गोल है टू इन्वेस्टिगेट ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। To investigate human impact on biological diversity. Ma'am, repeat. To investigate human impact on biological diversity. To investigate human impact on biological diversity. Next point देखो। To develop practical approach। Practical मतलब जो feasible हो। To develop practical approach to prevent extinction of species। To develop practical approach to prevent extinction of species। Prevent extinction of species. These were the two main goals. अब इन गोल्स को देखने के लिए कुछ हमारे एथिक्स हैं, तो राइट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो एथिकल प्रिंसिपल्स। एथिक्स मतलब जो हमें करना चाहिए, और हमारे एथिक्स मतलब हमारे कुछ एथिक्स हैं जो हमारे मॉरल वैल्यूज, उनको बोला जाता है एथिक्स। तो एथिक्स प्रिंसिपल्स which guide biological conservation are ethical principles which guide biological conservation are सबसे पहला पॉइंट है extinction of population and species is bad। किसी भी चीज को एलिमिनेट करना टोटली, अमेज़न फॉरेस्ट में हम फॉरेस्ट एरिया को टोटली खत्म कर रहे हैं, वो दैट इज बैड। तो बैड एक्सटिंक्शन ऑफ पॉपुलेशन एंड स्पीशीज इज बैड।
ultimate extinction of population and species is bad. Biodiversity is large, variable. Next point है biodiversity is large, variable and good for survival. Biodiversity is large, variable and good for survival. Next point, evolution is good for survival of species. आपको पता है evolution हो रही है, evolution is good for और हर species की एक value है, तो biodiversity has intrinsic value. इस चैप्टर में एक एक लाइन पे क्वेश्चन बनता है बच्चों, तो आप लोगों को जब आप चैप्टर हम रीड करेंगे लाइन टू लाइन तब आप लोगों को समझ आएगा. इसमें देखो सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ था, आप लाइन पढ़ोगे, फर्स्ट सेकंड पेज इंट्रोडक्टरी पेजेस होते हैं तो बच्चे मिस कर देते हैं. उसमें ये क्वेश्चन था रॉबर्ट मे के बारे में. उसने बताया था एस्टिमेशन फॉर ग्लोबल स्पीशीज, उसने कितनी वैल्यू दी थी, तो उसने बताया था एस्टिमेशन दी थी ग्लोबल स्पीशीज थी 7 मिलियन, और जो उसमें से कितनी स्पीशीज ऐसी हैं, तो 7 मिलियन, तो वो तो पहले की बात है जब उसने स्टार्टिंग में उसने एस्टिमेशन दी थी कि अर्थ में इतनी स्पीशीज थी. अब तो उससे डबल ट्रिपल है, ऑलमोस्ट 33 मिलियन स्पीशीज है. तो ये वैल्यू पूछी गई, दिस वैल्यू इज गिवन इन द एनसीईआरटी. तो पहले लिखो आप पॉइंट्स में, आप लिखोगे द नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ ऑल organism on earth is about the number of species of all organism on earth is about 1.7 to 1.8 million. Which is less than the actual number. Bracket में लिखो 15%, which is less than the actual number 15%. मैम रिपीट कर दो. बच्चे आप लिख रहे हो कि पहले एथिकल प्रिंसिपल्स लिखे, अब आप बता रहे हो नंबर ऑफ स्पीशीज का एस्टिमेशन, इट वाज अबाउट 1.7 टू 1.8 मिलियन. लेकिन बाद में रॉबर्ट मे ने, अब आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे, आपने लिखा विच इज लेस देन दी एक्चुअल नंबर 15% है, 15. ये नोट डाउन करो प्लीज, वी आर डूइंग दिस चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. तो इसमें आप लिखोगे रॉबर्ट मे MAY, रॉबर्ट लिख के रॉबर्ट मे एस्टिमेशन, रॉबर्ट मे एस्टिमेटेड value for global species was about 7 million. Robert May estimated the value for global species about 7 million. ये थोड़ी सी साइंटिफिकली ज़्यादा लग रही है, प्रूव्ड लग रही है साइंटिफिकली, इसका एस्टिमेट ये बिल्कुल ठीक था. इट वाज साइंटिफिकली मोर साउंड एस्टिमेट वैल्यू, इट वाज मोर साउंड वैल्यू. लेकिन जो पहले एस्टिमेशन थी दैट वाज अराउंड 1.7 टू 1. ग्लोबल में तो बहुत कम थी वैल्यू. राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट.
क्यों ये वैल्यू थोड़ी सी बेटर लग रही है? A population having more genetic diversity can adapt better. A population having more genetic diversity can adapt better to changed environment. A मैम रिपीट population, करना. हाँ, आप नेक्स्ट टाइम में लिख रहे हो पॉपुलेशन हैविंग मोर जेनेटिक डाइवर्सिटी कैन अडेप्ट बेटर टू चेंज्ड एनवायरनमेंट. ये टर्म्स अब आप लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल है. राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक. और एनसीईआरटी में बिल्कुल समझ नहीं आने वाला तो आप लोग लिखो. आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन डिटेल. तो इसमें लिखो डाइवर्सिटी एट कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम. डाइवर्सिटी एट कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम has three perspectives. Diversity at community and ecosystem has three perspectives. मतलब 3 टाइप्स हैं कम्युनिटी और इकोसिस्टम पे. सबसे पहली टाइप आती है अल्फा डाइवर्सिटी. ALPHA, अल्फा डाइवर्सिटी. It refers to diversity of organism. It refers to diversity of organisms sharing the same community or habitat. It refers to diversity of organisms sharing the same community or habitat. Refers to diversity of organisms sharing the same community or habitat. Next type is beta diversity. आप लिख लो फिर I'll explain. The rate of replacement of replacement of species. पहले आपने लिखा अल्फा डाइवर्सिटी, अब आप लिख रहे हो बीटा डाइवर्सिटी. The rate of replacement of species. The rate of replacement of species along a gradient of habitat or community. The rate of replacement of species along a gradient of habitat or community. Next type is gamma diversity. Diversity of habitat over total landscape. Diversity of habitat over total landscape or geographical area is called gamma diversity. Diversity of habitat over total landscape or geographical area. अब अगर हम एक एरिया की बात करें तो एक एरिया में 3 तरह की डाइवर्सिटी है, अल्फा बीटा एंड गामा. तो सबसे पहली पढ़ी है आपने अल्फा डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग द सेम कम्युनिटी, मतलब एक ही तरह के पेड़. दिस इज कॉल्ड एज द अल्फा डाइवर्सिटी शेयरिंग द सेम हैबिटेट. तो ये आ गया अल्फा.
अब दूसरा आपने पढ़ा बीटा डाइवर्सिटी, द रेट ऑफ रिप्लेसमेंट अमंग द ग्रेडियंट ऑफ हैबिटेट, मतलब इसमें इसी एरिया में ग्रेडिएशंस हो गई, मतलब चेंज आ गए, जैसे स्पीशीज कोई और बुशी आ गया, कोई टॉल आ गया, एरिया सेम है, सेम हैबिटेट कर रहे हैं, बट दे आर फॉर्मिंग डिफरेंट स्पीशीज, और कुछ इसमें सेम भी हैं ट्रीज, तो दिस इज व्हाट इज बीटा डाइवर्सिटी। तो ग्रेडियंट्स आ गए, ग्रेड्स अलग अलग आ गए, दिस इज व्हाट इज बीटा, इन दोनों को बोलेंगे बीटा, इसको बोलेंगे अल्फा, दिस इज बीटा। एंड नाउ गामा, गामा डाइवर्सिटी, सारी रेंज, द टोटल लैंडस्केप, डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट ओवर टोटल लैंडस्केप, मतलब इसमें यहाँ पे भी कुछ स्पीशीज होंगे, अगर बीच में रिवर्स आ गई या माउंटेन्स आ गए तो उसमें भी पेड़ अलग होंगे, दिस इज व्हाट इज गामा, टोटल विल बी गामा। अगर सेम हैबिटेट है, सेम कम्युनिटी है, तो उसको बोलोगे अल्फा, ग्रेडियंट्स आ गया, ग्रेडियंट ऑफ हैबिटेट और कम्युनिटी बीटा, टोटल लैंडस्केप ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया गामा। ओके, नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट टाइप। क्लियर है ये तीन टर्म्स, ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है तो समझ तभी आएगा जब आप लिखोगे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बायोडाइवर्सिटी चेंजेस विद लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड, बायोडाइवर्सिटी चेंजेस विद लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड, ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा। Biodiversity changes, yeah, varies with change in altitude or latitude. It increases as we move from high to low latitude. Biodiversity increases as we move from high to low latitude, that is from poles to equator. Biodiversity increases as we move from high to low latitude, and that is poles to equator. Next point में लिखो, biodiversity is useful in 3 ways. कहते हैं बायोडाइवर्सिटी के यूजेस क्या हैं। हम जो ये बार बार टर्म पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसका मतलब है वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सपोज आप डॉग में बात करते हो तो डॉग में डिफरेंट ब्रीड्स आते हैं, ह्यूमन बीइंग में डिफरेंट रेसेस हैं, हम लोग एशियन हैं, अफ्रीकन होते हैं, मंगोलॉइड होते हैं, और जो अब ऐसी हर एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट स्पीशीज है, मैंगो की कितनी वेराइटीज हैं, दिस इज व्हाट इज डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। तो इसके फायदा क्या क्या है, एग्रीकल्चर में क्या फायदा है, बायोडाइवर्सिटी यूजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन मॉडर्न use of biodiversity in modern agriculture. It is useful in 3 ways: as a source of new crop, source material for breeding improved varieties, source of new crops, source material for breeding improved varieties, source for biodegradable pesticide, source for biodegradable pesticides. नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एनवायरमेंटल या इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स। एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स।
अब इकोनॉमी में कैसे ये कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी, तो एनवायरमेंटल या इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स में लिखो, इट इज अ डिसिप्लिन दैट इंटीग्रेट it is a discipline that integrates economics, environmental science, it is a discipline that integrate economics, environmental science, public policy, बहुत आजकल important branch है environmental science, public policy and include evaluation of biodiversity. Evaluation of biodiversity in economic analysis. मैम प्लीज रिपीट कर दो। Which it is a discipline that integrate economics, environmental science, इकोनॉमिक्स को भी ऐड कर दिया, एनवायरमेंटल साइंस भी है, पब्लिक पॉलिसी एंड इंक्लूड इवैल्यूएशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इकोनॉमिक एनालिसिस। कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हमें इकोनॉमी में कैसे हेल्प कर रही है, कैसे हमें पैसे मिल रहे हैं इससे, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो वैल्यूज हैं, इसमें लिखो टू वैल्यूज। पहली वैल्यू है डायरेक्ट वैल्यू, डायरेक्ट में तो आपको सीधा फ्रूट्स मिल रहे हैं, तो दिस इज द डायरेक्ट वैल्यू, एंड इनडायरेक्ट में द अदर रिसोर्सेज दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द रिसोर्स। तो इसमें सबसे पहले लिखो डायरेक्ट वैल्यू, the products harvested by the people, अब इकोनॉमी को राइज करना है तो इसमें एक ड्रग है एंटी कैंसरस ड्रग दैट इज टेक्सोल, इट इज obtained from the plant Texas, Taxol obtained from the bark of plant Texas। तो डायरेक्ट वैल्यू में आप लिख रहे हो द प्रोडक्ट्स harvested by people, for example drugs from anti-cancerous drug obtained from the bark of plant Texas brevifolia, ड्रग का नाम है टेक्सोल। दूसरी टाइप लिखोगे इनडायरेक्ट वैल्यू, इनडायरेक्ट वैल्यू में लिखोगे द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय बायोडाइवर्सिटी, इसमें पैसे नहीं मिल रहे बट जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय बायोडाइवर्सिटी। तो बेनिफिट्स डिफरेंट टाइप्स हैं, पहली टाइप लिखो बेनिफिट्स, सब टाइप लिखो ए, क्लाइमेट मॉनिटरिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर एंड सॉइल रिसोर्सेस, क्लाइमेट मॉनिटरिंग MONITORING, सबसे पहले आप लिख रहे हो क्लाइमेट मॉनिटरिंग कॉमा सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेस वेस्ट मैनेजमेंट। और दूसरा इसी में सेकंड टाइप बी टाइप लिखो, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ।
conservation of wildlife. Okay, next topic लिखोगे species which are vulnerable to extinction, such as species which are vulnerable वो होते हैं जो which are at the verge of extinction. कहते हैं किनको रिस्क है ज्यादा, कौन ज्यादा रिस्क फैक्टर में एक्सटिंक्शन के, स्पीशीज वल्नरेबल फॉर एक्सटिंक्शन सच एज, सबसे पहले लिखो स्मॉल साइज पॉपुलेशन, ज्यादा खतरा किनको होता है जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो, स्मॉल साइज पॉपुलेशन। दूसरा लिखोगे लार्ज बॉडी साइज, नैरो ज्योग्राफिकल रेंज, मैम ये कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के अंदर था। बेटे वो तो कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ नहीं वो तो खत्म हो गया बेटे, अब नया टॉपिक आपने शुरू किया है स्पीशीज वल्नरेबल फॉर एक्सटिंक्शन सच एज। इसमें आपने लिखा पूछ रहा है, क्वेश्चन है कि कौन सी स्पीशीज है ज्यादा वल्नरेबल है फॉर एक्सटिंक्शन, तो बताया गया कि जिसका नंबर कम है, स्मॉल साइज पॉपुलेशन, जिसका साइज बड़ा है, लार्ज बॉडी साइज, नैरो ज्योग्राफिकल रेंज, मैम लार्ज बॉडी साइज। लार्ज बॉडी साइज, यस, जिनका साइज बड़ा होता है उनमें ज्यादा उनको खतरा होता है एक्सटिंक्शन का। कैसे मैम? मुझे प्रोटेक्शन के चांसेस कम होते हैं ना। अब जैसे आपने नॉर्मली किसी प्रीडेटर से बचना है या किसी स्ट्रेस से बचना है, तो साइज छोटा होगा तो आप कहीं पे भी अपने आप को एकोमोडेट कर लोगे, साइज बड़ा होगा तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप पे अटैक करेंगे, तो इट इज फॉर एवरीवन। पॉपुलेशन साइज जितना छोटा होगा उतना अपने आप को एडवर्स कंडीशन से बचा लिया, जमीन के नीचे चले गए, मिट्टी में छुप गए, किसी चीज के नीचे छुप गए, बड़े हो तो वो आप पे इफेक्ट आएगा ही आएगा। तो लार्ज साइज बॉडी साइज, small population size, narrow geographical range, one or few with one a species with one or few population, species with one or few population, and low rate of reproduction, low rate of reproduction. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ट्रॉपिक्स आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन वो हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होती है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द रीजन? ट्रॉपिक्स का रीजन, ट्रॉपिकल रीजन वो आएगा जहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे गोवा है, बॉम्बे है, जहाँ बीच बीच एरियाज हैं, वहाँ कहते हैं डाइवर्सिटी इज मोर एज कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन, मतलब एक्सट्रीम रीजन। तो व्हाई? कैपेबिलिटी ऑफ सनलाइट। ओके, और माउंटेन्स में ज्यादा टेम्परेचर होता है। फेवरेबल होता है।
Yes, temperature remains same throughout. Na, temperature is same. So there is less, the climate is stable throughout the region as compared to temperate. Temperate में extreme होगा, ठंड भी extreme, गर्मी भी extreme. जब पेड़ ने बनना होता है तो तब तक ठंड आ जाती है, फिर उनको अपने आप को हाइबरनेट या अपने आप को डायपॉज करना पड़ता है. तो इसी रीजन से ट्रॉपिक्स दे आर मोर फेवरेबल फॉर बायोडाइवर्सिटी. तो ट्रॉपिक्स आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी. सबसे पहला पॉइंट लिखो, द ट्रॉपिक्स हैड more stable climate than temperate zones. The tropics have more stable climate than temperate zones. नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, ट्रॉपिक्स they are more older than the temperate ones. Tropics are older than the temperate ones. Tropics are older than the temperate ones and had more time to evolve. Tropics are older than the temperate one and had more time to evolve. नेक्स्ट पॉइंट आता है वार्म टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन. Warm temperature and high humidity provide favorable conditions. अब ट्रॉपिक्स में सबसे अच्छी चीज ये है कि नो स्पीशीज इज डोमिनेंट, सो मेनी स्पीशीज दे को एग्जिस्ट. अब ये रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम पेस्ट. क्योंकि जब मैंने आपको बताया फेवरेबल है, तो फेवरेबल सब ऑर्गेनिजम्स के लिए. तो अगर कोई प्लांट ग्रो कर रहा है उसके लिए उसका पेस्ट भी ग्रो कर रहा है, उसके ऊपर पैरासाइट भी आ रहा है. तो इसीलिए ना कोई पेस्ट ज्यादा ग्रो करेगा ना, क्योंकि अगर वो पेस्ट उसे खा लेंगे तो वो खत्म हो गए, वो आप भी मर जाएंगे भूख से. तो इसीलिए no species is dominant in the case of tropics. The species they coexist. Write down the topic. The next point is species coexist. Many species coexist. फिर फूड चेन कैसे चलेगी? नहीं, फूड चेन वो बनते रहते हैं, तो इसीलिए कहते हैं ना कि वहां कोई स्पीशीज डोमिनेट नहीं कर रही है, सब स्पीशीज आपस में कोएग्जिस्ट कर रही हैं. ओवर नहीं होनी चाहिए ना. अगर फेवरेबल है तो सब कुछ ओवर होगा और फिर वो स्पीशीज एग्जिस्ट होने, सॉरी, एक्सटिंक्ट होनी शुरू हो जाएंगी. बट वो अपने आप को स्टेबल करते हैं, क्योंकि वो भी नंबर उतना ही रखते हैं, दूसरे भी खत्म हो जाएंगे, फिर दोबारा आ जाएंगे वो पेड़, फिर वो दोबारा से उनके ऊपर पेस्ट आने शुरू हो जाएंगे. दिस इज हाउ दे मेंटेन देयर नंबर. दे को एग्जिस्ट, ओवरडू नहीं करते, बिकॉज कंडीशंस आर फेवरेबल. अब वही पॉइंट आएगा, दे रिसीव मोर सोलर एनर्जी ओवर ईयर्स and are more productive. Receive more solar energy over years and are more productive.
मुझे इंट्रोडक्टरी पार्ट था, आप लोग फिर से एनसीईआरटी पार्ट में इसको पढ़ोगे इंट्रोडक्टरी पार्ट को, और बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि वो एक ग्राफ्स के फॉर्म में इविल क्वार्टेट अब पढ़ेंगे हम, तो आपको समझ आएगा क्या है। एक्चुअली वो इकोसिस्टम में था, तो आई थॉट आप लोगों ने किया हुआ है ऑलरेडी वो, बट वो इकोसिस्टम में था। तो वो इविल क्वार्टेट है, क्वार्टा मीन्स 4, तो कुछ कहते हैं कि 4 चीजें थी, 4 अभिशाप हैं इविल क्वार्टेट, जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है। तो इस चैप्टर में अब हम करेंगे आगे, वो आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। और बच्चे इस संडे को आई विल ट्राई कि आप लोगों की फिर वही नीट की क्लासेस शुरू हो जाए इस संडे ऑनवर्ड्स, ओके। सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन साइड? मैम इस संडे एग्जाम डिस्कस करोगे? हाँ, इस संडे एग्जाम डिस्कस होगा बच्चे, ओके। यस, एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर? एंड नेक्स्ट क्लास में आप लोग एनसीईआरटी बुक लेके आओगे, अपनी बुक्स के साथ पढ़ेंगे, ओके। सो टेक केयर एवरीवन, एंड प्लीज स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स साइड बाय साइड, अपने नोट्स जरूर बनाओ। यस अनुश्री? मैम पिछले चैप्टर से क्वेश्चन थे। हाँ बोलो। मैम ये आर क्या है? जी, इंट्रिंसिक रेट बोलते हैं, स्मॉल आर, इंट्रिंसिक रेट। तो मैम वो डिपेंड कैसे करता है? बच्चे उसमें ना अभी अभी फिर से आएगा वो ग्राफ नेक्स्ट क्लास में, इसी चैप्टर में फिर से है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। वो एक्चुअली ग्राफ में जब हम बोलते हैं ना रेट ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन साइज, तब हम यूज करते हैं उसको। कहते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उस पे उसको अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे आपने पढ़ा था डेथ रेट, बर्थ रेट, माइग्रेशन, मतलब इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, तो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर दैट इज द इंट्रिंसिक फैक्टर, जो इंटरनल फैक्टर अफेक्ट कर रहा है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ओके। तो उसके बाद हमने ऐड किया उसके अंदर कैरिंग कैपेसिटी, ओके। तो इसमें फिर इसी चैप्टर में फिर से आएगा ये पार्ट। मैम ये एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, हाँ हाँ हाँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इफ अ वो बच्चे, पॉपुलेशन हाँ growing वो, exponentially double in size in 3 years, what is the हम्म, intrinsic rate of increase? हाँ मुझे उसके लिए ना आई विल टेल यू एनसीईआरटी के 1-2 क्वेश्चंस है। अभी नहीं, 2:30, अभी 2:30 से टाइम। अच्छा, आई विल एक्सप्लेन विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस एनसीईआरटी में है, इसके ऊपर बेस्ड है, तो वो जब हम करेंगे क्वेश्चन तब आपको समझ आ जाएगा कि किसके ऊपर ये कैसे डिपेंड कर रही है, ओके। एनसीईआरटी से बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने सॉल्व करने हैं। वैल्यूज होती हैं ऑलरेडी फिक्स्ड वैल्यूज हैं, कैसे आपने चेंज करने, इस रेंज में आ रहे हैं तो पॉपुलेशन साइज इज स्मॉल, अगर रेंज से अबव आ रहा है तो पॉपुलेशन जो जे शेप कर्व आ रहा है, एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ ग्रोथ। और बाकी जो है वो आप लोगों को बच्चे साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। जैसे ग्रोथ कर्व जो दिए हुए हैं ना, वो एक बार रीड करो। मैम पढ़ लिया, वो तो समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ आया क्या बच्चे? क्या नहीं समझ आया? जो कर्व्स हैं वो नहीं क्लियर हुआ कि ये क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ? आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो? ये अनुश्री? यस मैम, ये आर बच्चे आर जो है ना रिप्रेजेंट कर रहा है इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ। जैसे सपोज फॉर्मूला था dn/dt इक्वल्स टू स्मॉल r इंटू एन, तो इंट्रिंसिक रेट जो है दैट इज गिवन बाय स्मॉल r। तो इसमें एक बार क्वेश्चन रिपीट करना अनु। if a अनुश्री? population growing exponentially double in size in 3 years, what is the intrinsic rate of increase? ओके, बच्चे देखो रेट ऑफ इंक्रीज कितना आ रहा है, इसमें आपने बोला डबल, और टाइम दिया आपने 3 years। तो फॉर्मूला है आपके पास dn/dt इक्वल्स टू r इंटू एन, स्मॉल r इंटू एन। तो इसमें इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट पूछा ना आपने, स्मॉल r n, तो इंक्रीज और डिक्रीज जो एन आर है ना दैट इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज इन नंबर। तो आर एन आपने निकालना है, आपने डी टाइम दिया 3 और जो उसका रेट दिया है डबल, तो 2/3 आएगा। इसको इसको सॉल्व करो। मैम एन में क्या 2/3, लिखना है? 2? यस यस, डबल किया ना आपने, आपने डबल ही बोला ना, डबल इन साइज।
Yes, sir. तो इट इज 2/3 एंड बाकी आप लोग सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.6. ठीक है, क्लियर? This is how we solve. So I'll explain other questions in the next class. And if you have query, yes, you can ask me anytime. बाकी आप लोग बच्चे काफ़ी बच्चे मेरे से इस पे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहते हैं, कुछ भी क्वेरी जब आप रीड करते हो तो आप पूछ सकते हो. ओके, सो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय फॉर नाउ एंड we'll discuss the question, not the question, we'll discuss the chapter from the NCERT in the next class. Okay, so take care everyone, bye bye. Thank you, ma'am. Thank Okay you. बच्चे, okay, bye bye. Thank you, ma'am. Okay बच्चे, bye bye.